Okay, so hello everybody, good morning and welcome back to the EduphoreIAS, the live Hindu class. Today, the date is of course, 25th of September, and we are starting with the front page or the first page of the Hindu. So let us start with this first. First news is related to Aadhaar, and the Moody's, that is the rating agency, has said that Aadhaar is somewhat unreliable in hot and humid India. This is said by Moody's, that is the rating agency. Now, on what basis it has said that this is unreliable, especially in hot and humid regions of the country? So, particularly, this Moody has given low ratings on the basis of you can see certain points. Moody's Investor Services cautioned against centralized digital ID systems, which is Aadhaar, as they pose security and privacy vulnerabilities. First is centralized digital ID hai, and of course it is governed by UIDAI, that is a single body. So there are few warnings. Number one, a single entity like UIDAI controlling users' ID credentials can dispose of user data for internal और third party profiling purposes. कि कहीं ना कहीं ये जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकती है इन डेटास को, जो डिजिटल डेटा है लोगों की, किस सेंस में, आइदर टू द थर्ड पार्टीज और इवन फॉर इंटरनल profiling. Second warning is Aadhaar system faces hurdles, including the burden of establishing authorization, and third is reliability of biometric technologies, especially for manual laborers in hot and humid climates, is questionable. So all digital IDs can have negative social repercussions. Now, one of the examples that we can cite from here is, of course, last month only what happened, that government extended the further, the dates for, you can say that last month, the government extended its deadline for switching to Aadhaar-based payment system for Manrega beneficiaries for the 5th time, pushing it to December 31st, 2023. We discussed because of, biometric issues, because not all, everybody has this, authorization, or you can say not all the laborers, especially the workers involved and, working under Manregas, they are not able to get the requisite, their, you can say, wages and all through this Aadhaar based पेमेंट सिस्टम ABPS. ठीक है, इसीलिए सरकार ने इसको अभी थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दिया फॉर द 5th टाइम की जो ऑथेंटिकेशन है उसको रिलायबिलिटी के साथ किया जा सके. सो रेटिंग एजेंसी रिमार्क्स assumes significance in view of the government's adoption of Aadhaar for routing direct benefit transfers to beneficiaries of official welfare schemes, and in particular dictate to mandate Aadhaar based payments for laborers under the मनरेगा. ठीक है, तो सरकार की, जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग से डिजिटल इंडिया फोकस है, कहीं ना कहीं बड़ी सारी चीजें हैं जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स. अब क्या होता है कि पैसा सीधा अकाउंट में जाता है, दैट इज बेनिफिशियरीज के अकाउंट में. ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कहा था कि अब जो भी मनरेगा के वेजेस हैं वर्कर्स के, वो सीधा हम जो ट्रांसफर है वो उनकी बैंक अकाउंट्स में करेंगे. एंड उसके लिए जरूरी है कि मैंडेटरली आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो लिंकेजेस है वो आधार के साथ की जाए अकाउंट की. ठीक है, नेक्स्ट इज हाउस पैनल ने ये कहा है कि मल्टीपल एंट्री एंड जो एग्जिट ऑप्शन इंडिया में लाने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली द हायर स्टडीज, may not suit India, said by the House panel. And of course, why so? This is the House panel, that is a parliamentary standing committee on education. ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सी कमेटी है. क्यों कहा है ऐसा? Not a viral meme. The National Education Policy 2020 promises multiple entry and multiple exit. Here meme means multiple entry and multiple exit, not that WhatsApp. Fine. For students, offering greater attention to life aspiration and greater flexibility for students. तो NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. इसके इसने ये इसके अंदर ये प्रोविजन है कि जो मीम है, दैट इज नेशनल मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन स्पेशली, वो लाया जाए. बट हाउस पैनल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो इसके उल्ट है. दैट इज फोकस है कि मीम को लाने की वजह से ग्रेटर अटेंशन टू लाइफ एस्पिरेशन एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हमें स्टडीज में देखने को मिलेगी, हायर स्टडीज में. बट हाउस पैनल ने कुछ अलग ही रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं. क्यों ऐसा, क्यों? सो it has said that the Indian institutions were likely to face several issues in implementing this system. Why so?
because the report was tabled in both houses of parliament during the recently concluded special session. The NEP proposes multiple entry and exit. The panel said while the meme looked like a flexible system which was being operated by Western educational institutions, effectively it might not work well in the country. Citing high population, it said that the estimated intake of students in higher education every year was high in India. So one of the reason is population. NEP says it removes rigid boundaries and creates a new possibility for lifelong learning. जो मीम के फायदे हैं, एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसके बारे में हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज फाइन. Store the academic credits earned by the student. Kerala government जो है had decided not to implement meme in the state. So आपको ये पता होना चाहिए कौन सी स्टेट है जो मीम को इम्प्लीमेंट करने नहीं जा रही. And students can opt for it at graduate, masters and doctoral levels. हाँ कहाँ पे applicable है ये भी पता होना चाहिए. And the state will allow multiple entry, but exit will be allowed either after 3 years with a degree or after 4 years with a honors degree. तो जो ऑनर्स डिग्री है वो 4 साल की होगी, जो नॉर्मल डिग्री है वो 3 साल की होगी एट द ग्रेजुएशन लेवल. ठीक है, तो ये स्टेट्स पे डिपेंड करेगा कि वो मल्टीपल एग्जिट जो है ऑप्शन देते हैं कि नहीं देते. अ सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ स्टडी, अ डिप्लोमा आफ्टर 2 years एंड अ डिग्री आफ्टर अ 3 year प्रोग्राम एंड ऑनर्स डिग्री आफ्टर 4 years. तो ये 4 सालों की कैटेगराइजेशन है इसमें. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर. उसके बाद ओके एक ये आर्टिकल है, थोड़ा इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड साइमल्टेनियस पोल्स इट में वर्क कहते हैं. जो राइटर है प्रशांत भूषण जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, ये कह रहे हैं कि जो साइमल्टेनियस पोल्स और इलेक्शंस हैं इट में वर्क ओनली इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो आज का आर्टिकल इसको हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट सिर्फ इस परसेप्शन इस दिस पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करेंगे सो दैट कि हमें ये पता लग जाए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है फॉर एग्जांपल इन यूएस, उसमें कैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन की पॉसिबिलिटी है एंड व्हाई नॉट पॉसिबल इन, और व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू गो फॉर दिस वन नेशन वन इलेक्शन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक अस. ठीक है, तो इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पेज. हाँ, तो लैंड अराउंड असम मोनेस्ट्री जो है वो अब रिजर्व किया जाएगा किसके लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए. ठीक है, जो भी उसके आसपास लोग रहते हैं इंडिजिनस जो भी हैं उनके लिए. दैट्स अ गुड थिंग. नाउ नेक्स्ट ऑफ कोर्स सिटी पेज फ्रॉम दिल्ली. सो दोज हु ज्वाइन फ्रॉम दिल्ली प्लीज डू हैव अ लुक एट इट. ओके, next pages we have states, and on states page you see more or less the politics only. Fine. Fine. So in Kolkata, a judge's passion for heritage brings a forgotten past into the light. So एक जज हैं बिप्लब रॉय. ठीक है, तो इनकी जो पैशन है वो हेरिटेज जो भी है उसको प्रिजर्व करना, कलेक्ट करना. So that's a very good thing. Next again from states, you see only politics here. Again from the states you have more or less politics. बिहार में 2 लोगों की मौत हो गई है सस्पेक्टेड हुज ट्रेजेडी हुज की वजह से. So Buddhist caves in Sri Lanka. क्या, क्यों? क्योंकि तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है वो बुद्धिस्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ काम कर रही है एंड इसी डायरेक्शन में कुछ एक टीम है जो तेलंगाना से विजिट करी है. कहाँ? बुद्धिस्ट केव्स इन श्रीलंका. यू नो बुद्धिज्म अशोका के टाइम पे श्रीलंका में काफी स्प्रेड हुआ था उस टाइम पे. सो कैन से द बुद्धा वनम टीम फ्रॉम तेलंगाना विजिटेड द 3rd century BC बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स एट मैथले ऑन द कोलंबो कैनेडी रूट इन श्रीलंका. तो कुछ चीज़ें यहाँ से जो नोटेबल हैं वो ये कि बुद्धा वनम प्रोजेक्ट जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है. तो सबसे पहले ये पता हो कि तेलंगाना से रिलेटेड है. उसके बाद
उसके बाद अगर आप देखोगे तो बुद्धा की टीचिंग्स हैं कॉल्ड त्रिपिटका, दैट इज सूत्र पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका, which were transmitted orally until that time were written on palm leaves under the auspices of Sri Lankan king Devaram Piyatissa. तो दीवाराम पियातीसा आपको पता होना चाहिए कि कंटेम्प्रेरी किसके थे, तो ऑफ कोर्स अशोका के कंटेम्प्रेरी थे, किंग अशोका। ठीक है, सो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स काफी कुछ बन जाता है हमारे लिए इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द। ठीक है, फाइन। सो दिस मच इज इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस इज कंसर्न। ठीक है, प्लीज टू कंसीडर दीपम स्कीम बेनिफिशियरीज इन एपी तेलंगाना। ओके, finally we have learned the editorial page and there are 3-4 articles important for us today. These pages of course, first is simultaneous polls but only in a presidential system, what written by senior he is the advocate at the Supreme Court, of course, known for the public interest litigation matters, Shri Prashant Bhushan ji। ठीक है, तो क्यों, देखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या दिक्कतें हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और साइमल्टेनियस पोल्स है क्या, ये सब हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि क्या इश्यूज हैं, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे इस आर्टिकल में, रादर हम इसमें कुछ जो न्यू चीज़ें हैं उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्पेशली तो ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें ये पॉसिबल है बट इसमें नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू किक स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन वन वुड नीड टू curtail the term of the assemblies in several states whose terms have not ended at the time the Lok Sabha election is to take place। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ठीक बात है, अगर 7 इलेक्शंस कराने तो टर्म बच गई है या खत्म हो चुकी है, उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा सारा प्रोसेस। तो ऑप्शंस दैट आर अनडेमोक्रेटिक, ऑप्शंस दैट आर अनडेमोक्रेटिक, फर्स्ट तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में क्या है कि लोग चुनते हैं अपनी सरकार को एंड वही सरकार चल पाती है जो कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है, मींस मेजॉरिटी होती है जिस सरकार के पास। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं there is a deeper problem in implementing one nation one poll in the present parliamentary system of India's democracy at both the central and state levels, since the survival of the government is dependent on its enjoying the confidence of the majority of the house, the government can fall mid-term, thus leading to mid-term elections। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे देखते भी हैं कि हो सकता है कि 5 साल के लिए सरकार चुनी गई हो बट 3 साल के बाद ही सरकार मेजोरिटी लूज कर जाए, या फैक्शंस की वजह से कि कुछ पार्टी के लोग हैं वो दूसरी पार्टी से हाथ मिला लें, तो सरकार जो है प्रेजेंट वो गिर सकती है। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? However, in one nation one poll you cannot have mid-term elections if the rest of the states and the center have to go to the polls together। Therefore, the only option would be to either continue with the minority government headed by a chief minister or prime minister, central state level कहीं भी हो सकता है ऐसा, इसलिए who has lost the confidence of the house, or to impose president's rule for the rest of the term। ठीक है, सो ये सॉल्यूशन है कि जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट है या तो कंटिन्यू रखो विच इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, या और अनडेमोक्रेटिक है, या तो क्या है कि प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज कर दो या गवर्नर्स रूल इंपोज कर दो इन द स्टेट्स एंड सेंटर रिस्पेक्टिवली। तो उस केस में क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक ये सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है, बट ऑफकोर्स टाइम ड्यूरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि कहीं पे सरकार 3 साल में गिर जाए तो क्या 2 साल तक वहाँ पे सेंटर की बात हो तो प्रेसिडेंट रूल लगा के रखोगे, या स्टेट में है तो क्या 2 साल तक गवर्नर्स रूल चलेगी। तो देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्निकलिटीज जहाँ पे इश्यूज हैं। देयरफॉर ये कहते हैं कि सोल्यूशन क्या है, वन नेशन वन पोल इज पॉसिबल ओनली इफ वी स्विच टू अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where the government is run by a directly elected president or governor who does not need to enjoy the confidence of the majority of the house। For example, USA। तो यूएस में क्या है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर जनवरी में होने वाली है, सो वहाँ पे अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जो आप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं, इसलिए वहाँ पे मेजोरिटी की सच इश्यूज नहीं आती। ठीक है, दिस हैपेंस इन कंट्रीज सच एज यूएस। इन दोज कंट्रीज देयर इज आल्सो क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन लेड डाउन फॉर द प्रेसिडेंट गवर्नर। इफ द प्रेसिडेंट डाइज मिड टर्म द वाइस प्रेसिडेंट एंड देयर आफ्टर द स्पीकर बिकम्स द प्रेसिडेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। कि अगर बाई चांस प्रेसिडेंट जो है उनकी
मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा कि नेक्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस भी होते हैं, इस टाइम पे इंडियन ओरिजिन की ही है, ठीक है, कमला हैरिस जी। सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बन सकते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी कोई इशू होता है तो फिर नेक्स्ट इन लाइन सक्सेशन के लाइन में कौन होता है? स्पीकर, ठीक है, जैसे हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा वैसे ही वहां के स्पीकर है। So such a presidential form can have one nation, one poll without compromising the essence of democracy. डेमोक्रेसी है ना, ठीक है। तो ये है। उसके बाद इन्होंने लॉ कमीशन की बात की, कुछ कमिटीज की बात की कि उन्होंने क्या बताया कि इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या पोस्ट इश्यूज हैं, तो वो बातें की हैं इन्होंने, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देयरफॉर नीड नॉट टू गो इनटू दैट अगेन। एंड सीधा फिर हम क्या करते हैं कि सीधी सी बात है कि नीड फॉर अमेंडमेंट। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, जैसा कि इन्होंने सोल्यूशन दिया है, तो इसके लिए हमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड कौन कौन से अमेंडमेंट्स होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड नीड टू बी अमेंडमेंट टू स्विच टू एन एसेंशियली प्रेसिडेंशियल सिस्टम वुड बी एज फॉलोज। पार्ट 5 द यूनियन चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव आर्टिकल्स 52 to 78 एंड चैप्टर 3 अंडर पार्ट 5 चैप्टर 1 चैप्टर 3, ये सारे हमारे को जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट डिफाइन करता है। देन पार्ट 6 द स्टेट्स के बाद पार्ट 5 पार्ट 6, पार्ट 5 से चैप्टर 1 चैप्टर 3, पार्ट 6 से आपके चैप्टर 2 दैट इज अगेन रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 153 to 167, दैट इज ऑफ कोर्स इट टॉक्स अबाउट द स्टेट्स, पार्ट 6 एंड चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो हमारे को उन अमेंडमेंट्स को करनी पड़ेगी जिससे कि इस पे असर हो, प्रेसिडेंशियल के पावर पे, लेजिस्लेचर स्टेट्स असेंबली लेजिस्लेचर के पावर में चेंजेस आए और साथ में गवर्नर की पावर्स भी, ठीक है। तो ये सारी हमारे को अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। चैप्टर 4 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिलेटेड टू द यूनियन, पार्ट 6 दैट इज रिलेटेड टू द स्टेट्स, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम चैप्टर्स इन बिटवीन these two parts. So introduction of presidential system would also require amendments to include several new provisions within the constitution regarding the powers of president, the governors, the council of ministers and provision relating to the line of succession. बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे को इतनी सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम लाना चाहते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है, ऐसा ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंडिया में है इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो है वो बेसिक फीचर है जिसको कि अमेंड नहीं किया जा सकता, ऐसा कोर्ट ने कहा है। सो बट ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड डिस्कस द इशू ऑफ अ पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट सम लेंथ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, they for good reason adopted the parliamentary system in a diverse country such as India. However, in his view that would still not make the parliamentary system part of the basic structure, ठीक है। So democracy is indeed a part of basic structure, but parliamentary democracy is a part of basic structure. According to him, this is not true. Democracy is certainly, of course, part of basic structure and is consistent with the presidential form. One cannot say that the American system is not democratic. Of course, America जो है it's the oldest democratic nation, democracy it has. Some people also feel that the presidential system would be antithetical to a federal country like ours, but that is not the case either. ठीक है, so देख सकते हो कि presidential form of government के बारे में इन्होंने उसके प्रोज को अंडरलाइन किया, उसके पॉजिटिव्स को अंडरलाइन किया कि फेडरल सिस्टम, यूएस में भी तो फेडरल सिस्टम है ना, हमारे यहाँ भी है, तो कहते हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म की वजह से इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करना दिक्कत कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो, बट ऐसा नहीं है कि he is saying कि no, this is not the case either. The United States is a federal country with the states enjoying vast powers even within presidential form. So US का again example quote कर रहे हैं, the devolution of powers to the states or to the lower ranks of the government or lower levels like tiers of government like panchayats and municipalities will not depend on whether the system is presidential or parliamentary. In a presidential system, the power of the government is concentrated in one directly elected person, whether he is the president of the country or the governor of the state, rather than being in the hands of multiple legislators like in India. So this is probably a reason why the constitution framers chose a parliamentary rather than a presidential form, since they did not want executive power to be in the hands of one person alone, especially in a diverse country like ours. However, that too is saying my mind is not part of the basic structure.
ठीक है। so even ये भी जो है that is not the part of the basic structure that is parliamentary democracy, that is democracy is indeed part of. so the governments move. अब यहाँ पे ये सारा मोर और लेस पॉलिटिक्स की बात करें कि सरकार इसलिए लेके आ रही है इस टाइम पे ये चीज़ें, क्योंकि कमेटी जैसे बनाई है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अंडर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हैंड पिक्ड मेंबर्स हैं उसके सरकार ने अपने हिसाब से, एंड कहीं ना कहीं अपोजिशन जो है वो इस चीज़ से ताल्लुकात नहीं रखती कि हाँ साइमल्टेनियस इलेक्शंस की अब बात अभी की जाए और यहाँ पॉसिबिलिटी है इस टाइम पे। तो दिस फ्रेश अटेम्प्ट, पहले भी अटेम्प्ट किए गए हैं, बट दिस फ्रेश अटेम्प्ट टू स्विच टू वन नेशन वन पोल अपीयर्स टू हिम एज अ नॉन स्टार्टर, एंड ही इज सेइंग कि अनदर रीजन फॉर दिस इज कि सरकार कहीं ना कहीं नेक्स्ट 4-5 जो स्टेट्स है वहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं इसी ईयर के एंड में या बिफोर लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2024। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हो सकता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, स्पेशली जो अभी सेंटर में पार्टी रूल कर रही है, उसकी जो सरकार है वो ना आए या वहाँ जीत ना मिले, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए सरकार ऐसे मेजर्स ले रही है, ठीक है, ताकि इलेक्शन को डिले किया जाए, क्योंकि हार करके अच्छा नहीं लगेगा लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल एंगल है, इसलिए इसमें हमें इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर अस इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म। सो व्हाट ऑफ कोर्स कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी चाहती है कि प्रेसिडेंट जो रूल है अंडर आर्टिकल 356 और स्टेट इमरजेंसी जिसको बोल देते हैं कि उसको इम्पोज कर दिया जाए, एंड देन गेट प्लान्ड इलेक्शन कमीशन टू टो द गवर्नमेंट्स लाइन टू पोस्टपोन द असेंबली इलेक्शंस एंड इलेक्शन टू द लोकसभा happens, ठीक है। but again this is something which is not possible because though the Supreme Court of India has held that the Election Commission of India has a leeway of up to 6 months to hold the election after the dissolution of the assembly, क्योंकि कोई भी असेंबली अगर इलेक्ट हुई है तो 5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है। तो स्पेशल केसेस में इसके टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है एट द मैक्स बाय 6 months ओनली, ठीक है। The justification of using that leeway merely because the committee is again considering the idea of one nation one poll would be a malafide decision and thus liable to be struck down by the courts। अगर सरकार ये कहती है या इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि एक कमेटी बनाई गई है साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिलेटेड एंड देयरफॉर कहीं ना कहीं हमें अभी इलेक्शन की डेट को पोस्टपोन कर देना चाहिए, तो दिस सीम्स टू बी अ मैलाफाइड डिसीजन एंड देयरफॉर दिस liable to be struck down by the ऑनरेबल कोर्ट्स, ठीक है। तो इसलिए ये कहते हैं कि चलो हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़नी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर नहीं पॉसिबल वन नेशन वन इलेक्शन तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कैसे पॉसिबल है, उसके बारे में काफ़ी अच्छा लिखा भी, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर द इजराइल लिंक एंड द जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पे जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, यहाँ पे भी पुरानी खबरें हैं सारी G20 रिलेटेड, जो भी इंडिया की सक्सेस रही है उसकी बात हो रही है। कैंडिडेट व्यू में भी यही कह रही है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली डिक्लेरेशन है जो कि नोट वर्दी अचीवमेंट रही है इंडिया के लिए, क्योंकि कंसिडरिंग द इजराइल यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट दिस रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड absence of the presidents of the two countries, that is China and Russia, still we managed to get it this Delhi declaration, so somewhat it was a great achievement for India. So इन सब में ना जाते हुए सीधा हम टाइटल पे फोकस करते हैं। टाइटल क्या है? That is an economic corridor, the Israel link and the geopolitics. So economic corridor यहाँ पे क्या है? इंडिया म्यांमार, इंडिया मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया जिसको बोल देते हैं यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEEC, ठीक है। अब इशू ये है कि ये कॉरिडोर जो है वो इजराइल के जो हाइफा पोर्ट है, ठीक है, उसको भी लिंक कर रहा है, बट कहीं ना कहीं इजराइल जो था वो एब्सेंट था इन G20 उसमें। इजराइल इज ऑफ कोर्स नॉट अ पार्ट मेंबर ऑफ G20, बट इनविटेशन एज अ गेस्ट कंट्री 9 कंट्रीज को बुलाया गया था, तो हो सकता है कि इजराइल को भी बुलाया जा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। और इजराइल के एब्सेंस में ये जो जो कॉरिडोर है इससे रिलेटेड एग्रीमेंट की गई, तो इसी के रिलेटेड इन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि ऐसा भी है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन जो है इन्होंने एक बिग डील बोला है इसको, एंड इनफैक्ट जो बेंजामिन नेतान्याहू जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, उन्होंने मिस्टर बिडेन को थैंक भी किया इस कॉरिडोर के लिए, बट ही डिड नॉट मेंशन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। तो of course but anyhow बड़े अच्छे relations, good friendship, Mr. Modi and Mr. Netanyahu share a good friendship, perhaps factors such as meet between Saudi Arabia and Crown Prince Mohammed bin Salman and Mr. Netanyahu। तो कल भी मैंने डिस्कस किया था इन द लास्ट डिस्कशन सैटरडे कि वेस्ट एशिया से रिलेटेड हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि जो अब्राहम अकॉर्ड के अंडर
जो नॉर्मलाइजेशन हमें टाइज में देखने को मिल रही है बिटवीन द अरब्स एंड द इजराइल, बिकॉज इजराइल इज ज्यूइश कंट्री, ठीक है, एंड हिस्टोरिकली रिलेशंस अच्छे रहे हैं इन दोनों के, इजराइल के एंड ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया एंड अदर अरब कंट्रीज। बट हमें अब्राहम अकॉर्ड जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के टेन्योर में कंक्लूड एग्रीमेंट ये दोनों के बीच में हुई थी, प्लस मोरक्को भी बाद में ज्वाइन करा, फिर बहरीन पार्ट ऑफ दिस अब्राहम अकॉर्ड। सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अब नॉर्मलाइजेशन हमें रिलेशंस में देखने को मिल रहे हैं बिटवीन इजराइल एंड दिस सऊदी अरेबिया, स्पेशली इन अदर अरब नेशन। ठीक है, सो ये ज़रूरी हो जाता है, इसी बारे में बात की कि कहीं ना कहीं, बट फिर इजराइल में भी आपने देखा होगा कि लास्ट मंथ कुछ जुडिशल रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए गए थे बाय द दिस नेतान्याहू गवर्नमेंट। सो ऑफ कोर्स इस वजह से उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्शन से डेमोक्रेटिक और डोमेस्टिक इशूज चल रहे थे, इस वजह से भी हो सकता है कि नेतान्याहू जी को बुलाया ना गया हो या वो खुद आने को इच्छुक ना हो। ठीक है, प्लस कुछ टाइम से मिस्टर बिडेन एंड मिस्टर नेतान्याहू के भी जो रिलेशन हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, बिकॉज सम वॉट डोमेस्टिक, जो मैंने कहा कि जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड वो है, उसको कहीं ना कहीं अमेरिका सपोर्ट नहीं करता। तो एक डोमेस्टिक कंपल्शन भी है मिस्टर नेतान्याहू के सामने, तो ये भी मुद्दा हो सकता है। प्लस इन इजराइल एब्सेंस एंड द पॉसिबल फैक्टर, सो दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। इसके पीछे एक और रीजन है कि मिडल ईस्ट की जो प्रेजेंस है इस वजह से भी, बिकॉज इन इट्स रिपोर्ट ऑन द G20 द अरब न्यूज फाउंड that the India's G20 leaders summit had an unprecedented Middle Eastern presence. India set a precedent in G20 history by inviting the most Middle Eastern countries ever to take part as a guest in the group की summit. And one wonders why Israel, India's strategic partner also from the region, was not given such an invitation. So as a host, India invited 9 non-member countries: Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, Spain. ठीक है, तो ये 9 कंट्रीज हैं जिन्होंने एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया गया था, बिकॉज दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ G20, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग्स दिस 9 वर ऑफ कोर्स द UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिनके साथ हमारे UAE एंड सऊदी अरेबिया दोनों के साथ ही हमारे रिलेशंस में बहुत अच्छे हुए to the summit. So it is all more perplexing when the economic corridor was to be announced at the same summit and Israel is a part of the plan. Israel although plan part तो है ही इसका, but formally present नहीं थे, उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कोई नहीं था इजराइल की साइड से, तो ये थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो सकती थी। बट एनी हाउ मिस्टर मोदी एंड मिस्टर नेतान्याहू एंजॉयज और शेयर अ गुड फ्रेंडशिप। ठीक है, तो प्लस मिस्टर नेतान्याहू के अपने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी एक कंपल्सन हो सकती है उनकी एब्सेंस की। तो अ पुश फॉर पीस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये कह रहे हैं कि जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ, जो नॉर्मल रिलेशंस हो रहे हैं बिटवीन सऊदी अरेबिया, because Saudi Arabia is willing to actually end the diplomatic boycott of Israel, ठीक है, and it is a historical change because such an acceptance of Israel by the most important religious speaking Muslim country, that is Saudi Arabia, will help Israel with other countries such as Pakistan, already willing to have relation with Israel, Indonesia and Malaysia. हिस्टोरिकली जीविश कंट्री है जो, एंड इनके रिलेशन जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके साथ ठीक नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये सिनेरियो चेंज होता हुआ दिख रहा है। एंड सऊदीज डिमांड दैट द इजराइल कमिट्स टू द 2-state solution and the well-being of the Palestinian people. तो इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। पैलेस्टीन वांट्स टू बी अ सेपरेट नेशन, इसलिए यहाँ पे 2-state solution जो है 2-state नेशन, उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया की जो नेशनहुड है वो ग्रांट की जाएगी इसको पैलेस्टीनियन को। ठीक है, बट इजराइल ऐसा नहीं मानता। ठीक है, इजराइल जो है वो सबको पार्ट मानता है। इजराइल पैलेस्टीनियन में जो है मुस्लिम आबादी है कहीं ना कहीं, तो ये काफी मुद्दा काफी सालों से चल रहा है। Currently on the sidelines of the UN General Assembly, Saudi Arabia in partnership with the Arab League and the European Union has joined forces with Egypt and Jordan to launch a peace day effort aimed at incentivizing Israelis and Palestinian leaders to compromise. ठीक है, कि कॉम्प्रोमाइज करके जो पैलेस्टीन है उसको फ्रीडम दी जाए ताकि वो एक सेपरेट नेशन बन सके। इजराइल पैलेस्टीन जो पीस है इज अ वेरी चैलेंजिंग एम एंड गिवन द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म ऑन बोथ साइड्स, देखते हो आपकी दोनों साइड से अटैक्स होते रहते हैं। हिजबुल्लाह नाम सुना होगा आपने, तो काफी सारे मिसाइल्स एक साइड से दूसरी साइड दागते रहते हैं। इट अपीयर्स ऑल द मोर इम्पॉसिबल गिवन दिस राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म ऑन बोथ साइड्स पैलेस्टीन एंड इजराइल. So Saudi Arabia is aware of it and is still interested in having deliberations to work smoothly among Arabs and other Muslims while working with the Biden administration to make peace with the state of Israel. The Indian Middle East Europe economic corridor will have to wait until this happens.
what until this happens? So until Israel and Palestine comes to a compromise or an agreement establishing peace in the region. Next article, again important one, and that is related to taking India back to the drawing board, and this is of course related to the 128th amendment bill that is related to providing 33% reservation for women in Lok Sabha and state legislative assemblies alongside the national capital territory of Delhi. ठीक है, तो कौन सी अमेंडमेंट है ये ध्यान रखना, 128th अमेंडमेंट बिल है ये, जो एक्ट बनेगा हो सकता है कि 106 अमेंडमेंट एक्ट बने होपफुली, क्योंकि अभी तक हमारे पास 105 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हैं, हाँ 105, तो 106 और लेस, ठीक है। अगर इसको एसेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की तो मिल भी जाएगी, बट देयर आर सर्टेन इश्यूज। पहले भी हमने डिस्कस किया कि चाहे ये पास हो गया हो, चाहे ये एक्ट बन जाए, बट अभी इंस्टेंट इमीडिएटली जो नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन है 2024 की, उसमें जो रिजर्वेशन है इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्यों? विमेन को 33% रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगी सरकार। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। पहला ये कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो फिक्स कर दी, फ्रीज कर दी गई है अप टू द ईयर्स 2026। तो जो नेक्स्ट सेंसस होगी आफ्टर 2026, उसके बेस पे हमें जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखने को मिल सकती है। डिलिमिटेशन इज बेसिकली चेंजिंग द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ the states or the for the this Vidhan Sabha seats and for the of course Lok Sabha seats, ठीक है। क्योंकि ओवर द टाइम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और अब तो हम तो गोल्ड मेडल हमें मिल चुका है बाय द वे, बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो देयरफॉर ये नीड है, ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं चेंज किया जाए, ठीक है, इस सिनेरियो को, सीट्स को बढ़ाया जाए, दैट कि जो बेटर रिप्रेजेंटेशन है वो एक यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉपुलेशन को मिल सके, सिटीजन्स को मिल सके, उस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से अभी इमीडिएटली इसका फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो 2029 की हो सकता है कि जो लोकसभा इलेक्शन हो हमें देखने को मिल जाए, 24 में तो पॉसिबल, ठीक है। सो given their almost festive nature in India, especially of the elections are traditionally considered to be the primary site where democracy translates into action. एक बात है, equally significant is the carving out of the boundaries of electoral constituencies and an issue that has implications for adequate representation. ठीक है, so the exercise of carving electoral constituency and fixing their boundaries is referred to as the delimitation of the electoral constituency जो है carve करना and plus fixing the boundaries is nothing but delimitation. delimitation कमीशन इसके लिए बनता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और वो फिर इस चीज को अंडरटेक करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। So since the 1970s there has been no change in the number of Lok Sabha seats, 545 अभी भी है, okay? The Constitution 42nd Amendment Act, that is of 1976, proposed the delimitation of Lok Sabha constituency as per census of 1971 up to the census was to be conducted in 2001, but further 2001 में इसको बढ़ा के कर दिया गया up to 2026, and this was done through 84th amendment. ध्यान रखना अंडर आर्टिकल 82, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज 46th amendment froze the seats up to 2001, and then 84th amendment constitutional amendment act then further extended these frozen seats up to the year 2026. 84th. While the boundaries of the electoral constituency were redrawn in 2002, there was no change in the number of seats in the Lok Sabha. ठीक है, कि बाउंड्री जरूर रिड्रॉ की गई थी बट सीट्स में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले। तो ओनली आफ्टर 2026 विल वी कंसीडर चेंजिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोक सभा। Strictly speaking, relevant numbers as to population are expected to come from the 2031 census, which will be the first census after 2026. ठीक है, तो देख सकते हो कि 2031 के सेंसस के बेस पे अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑलमोस्ट अभी 10 साल वेट करना पड़ सकता है, बट द मोस्ट फिजिबल और प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन है हो सकता है कि 2029 की जो इलेक्शन होगी हमारी लोकसभा की, उसमें देखने को मिले रिजर्वेशन टाइम। तो डिलिमिटेशन एज ऑफ नाउ, आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है says that each state gets seats according to their population.
in the Lok Sabha in proportion to its population. ठीक है, अब फ्रीज क्यों किया गया था इन 1976 में जो सीट्स थी उसकी, इसलिए in order to allay the concerns of the states which took a lead in population control and which were faced with the prospect of reduction of their number of seats in the Lok Sabha, especially southern states जो है इंडिया की, ये पॉपुलेशन को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काफी मेजर्स लिए स्टेट्स ने, जिसकी वजह से पॉपुलेशन स्टेबलाइज हुआ इन में. बट अगर सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाती तो सिंस पॉपुलेशन इन स्टेट्स में उतना नहीं बढ़ा जितने नॉर्दर्न स्टेट्स में इंडिया में देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं इनको नंबर ऑफ सीट्स जो लोकसभा में इनके लिए अलॉट होती है उस पर नुकसान हो सकता है. बिकॉज पॉपुलेशन कम है तो आपको सीट्स, बिकॉज सीट्स गेट्स allocated as in proportion to the population. So the practical consequence, however, of the 1976 freeze is that the allocation done on the basis of 1971 census continues to hold good for the present population figure as well. India's population has of course increased significantly since then. Using figures from 1971 की अगर बात करें to represent today's population runs contrary to the grain of the constitution, besides obviously distorting what representative democracy stands for. बिल्कुल ठीक बात है. 1971 में population और आज की बात करें तो चेंज है. अगर पॉपुलेशन फिगर आप देखोगे इंडिया की, तो जो आपने 1971 के बेसिस पे पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पे आपने फ्रीज कर रखा हो, 2026 तक कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है, अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क. So the exercise of delimitation also implicates the constitutional values of federalism and representation of states as consolidated units. In the preceding decades, the population of the north has increased at a faster pace as compared with the south. ये already हम discuss कर चुके हैं. Given this context, the question of delimitation necessarily has serious implications for both the individual voter as well as the states. The southern states run the risk of losing some of their seats in parliament once the delimitation exercise is completed based on current population figures. क्योंकि वहाँ पे populations कम हुई है and seats जो है वो जो allocate ही होती है the basis of population. तो जहाँ पे population कम है वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं seats कम होते हुए नजर आ सकते हैं. तो ये it's not a good thing. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो उसके लिए रिवॉर्ड करना चाहिए ना कि पनिशमेंट देनी चाहिए. ये तो तरीके से पनिशमेंट दिख रही है. तो डिलिमिटेशन इन द नियर फ्यूचर. द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अपीयर्स रेडी टू हाउस. लोकसभा जो है उसमें अकेले 888 मेंबर्स बैठ सकते हैं. ठीक है, अभी 545 की जो सीट्स में थी 550 तक. एंड जो न्यू राज्यसभा है उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज समवॉट अराउंड 384 from 250 currently, 45 effectively. So how these MPs will be spread out across India's electoral constituencies and how many people each MP will represent are questions that beg urgent answers. The freeze in 1976 was necessitated by states' apprehensions embedded in the consequences of their population control measure and widely differing fertility rates. So उस time freeze of course logically किया गया था on the request of the states, especially considering two factors. First was of course the consequences of their population control measures, and second, differing fertility rates across the states. So such concerns hold good even today, and the delimitation, क्योंकि आज भी देखोगे तो southern states यही reservation है, यही concerns हैं. So the delimitation of the constituencies will need answers to certain vexed questions. The first question might seem more logistical than anything else, where should the population figures come from to inform the exercise of the delimitation? Either the 2021 census was pushed, of course. So अभी आने हैं इस census की reports. So Home Minister has indicated that the next census and the subsequent delimitation will be conducted after 2024 Lok Sabha polls. ये clearly बोल चुके हैं हमारे Home Minister साहब. So interestingly, if the next census were to be actually conducted in 2031, after 2021, let us assume, which is when it is due, the population figure from 1971 would have informed the distribution of seats in the Lok Sabha for more than half a century. ठीक बात है. 2031 and 1971, 30 and 30, 60 years, 30 plus 30 somewhat, 60 years, more than half a century. So, of course, this is not a fair game. So let us not forget that upon completion of the census and the redrawing of electoral boundaries, the change in the numerical composition of the Lok Sabha will have to be reflected in the constitution through an amendment. Amendment करनी पड़ेगी. So if done entirely in terms of proportion of population, this redrawing of boundaries, constituencies, the redrawing of constituency would yield more seats to states in the north given their higher population. बिल्कुल ठीक बात है.
and of course it will lead to some mistrust or distrust on the part of the southern states. So the recently concluded, or you can say the recently delimitation in Assam ahead of 2024 assembly elections witnessed widespread concerns around how altering the boundaries of certain districts and renaming certain constituencies can have a potential acute impact on the representation of specific communities. बात है इस सीट्स में चेंजेस की जा रही है या रिप्रेजेंटेशन में कम की ज़्यादा की जा रही है, स्पेशली अगर कम की जा रही है तो हमारे को जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ की वहाँ पे हमें कमी देखने को मिल सकती है. So that is all the indication needed to start a robust conversation around delimitation sooner than later, so that lifting of the freeze on allocation of Lok Sabha seats does not have to be pushed ahead further, and that will be a stopgap solution to an imminent concern, one that cannot be wished away. बिल्कुल ठीक बात है कि जल्दी से जल्दी इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि हम वेट करते रहें 2031 तक. ठीक है. टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट से जो न्यूज़ है दैट इज फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी. अब इसमें है क्या कि फुकुशिमा जो न्यूक्लियर जो अटैक हुआ था एक्चुअली, तो उसकी वजह से वहाँ के जो पानी सारा कुछ था तो उसमें कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियर एलिमेंट्स हमें देखने को मिले थे. जापान ने किया गया था कि उन सारी वाटर उसको अराउंड 800 ऑफ टैंकर्स में लगभग स्टोर कर दिया था ताकि उसे बीमारियां ना हो फर्दर. एंड नाउ अब उसको दोबारा से डिस्चार्ज करने का मन बना लिया है इन पैसिफिक ओशन जापान में. ठीक है, जो ऑलरेडी टैंकर्स में स्टोर्ड है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसलिए चाइना ने भी उस पर रोक लगा दिया है जो फिश रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम दिस मैरीन प्रोडक्ट्स फ्रॉम जापान के, कहीं ना कहीं इसमें न्यूक्लियर एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. So on April 13, 2021, Japan's government announced plans to release over 1 million tons of contaminated water from the Fukushima nuclear plant into the sea over the next 30 years. तो धीरे धीरे ऐसा नहीं कि एक बार में ही. ठीक है. So a key factor for Japan in maintaining relation with South Korea in particular has been transparency over the treatment and release process. So South Korea's government, following repeated consultation by the IAEA, International Atomic Energy Agency, has told people that the water and the seafood is safe. Because इसको डिस्चार्ज ऐसे नहीं कर दिया जाएगा, उसको ऑफ कोर्स थोड़ी सेम वाटर को नहीं, बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जो कंटामिनेटेड वाटर है उसको कोशिश की जाएगी कि रिफाइन किया जाए, ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन एंड ऑल. तो आईएई ने कहा है कि इससे कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला. फाइन. तो साउथ कोरिया बट और जब चाइना, ये दो बड़े ही कंसर्न है इस न्यूज़ से. फाइन. नेक्स्ट इज खालिस्तान के झंडा देख सकते हो आप. सो ऑफ कोर्स दिस न्यूज़ इज हाउ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एथनिक इंडियंस कॉजेज फ्रिक्शंस इन इंडिया कनाडा टाइज. जो चल रहा है हम डिस्कस भी कर चुके हैं क्या चल रहा है. सितंबर 19 को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था that his government is investigating possible links. What he exactly said, government is investigating possible links between the Indian government and the assassination of Khalistan Tiger Force Chief Hardeep Singh Nijjar in Canada. This statement has escalated tension between India and Canada. September 19 की बात है ये, 18 की probably. Talks paused and diplomats fired. In this article dated June 14, 2023. So पहले ही इस पे विवेक अर्जुन जी ने लिखा था, पहले ही लिख चुके हैं. ठीक है. सो इंडियन रिस्पॉन्स हम सबको पता है क्या रिस्पॉन्स हुआ. हमने भी उनके डिप्लोमेट को कहा है कि अब जाओ भाई आप भी. ठीक है. उसके बाद काफ़ी वीज़ा रिलेटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी मेजर्स लिए इसके लिए. ठीक है. एंड डायस्पोरा एंड द फॉरेन पॉलिसी. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज डायस्पोरा एंड फॉरेन पॉलिसी. द एथनिक इंडियन कम्युनिटी इंक्लूडिंग द सेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैनेडाज पब्लिक लाइफ. देयर आर करंटली सम एथनिक इंडियंस इन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज कैबिनेट. ठीक है. सो इस वजह से उनके एक पॉलिटिकल कंपल्शन भी है. फाइन. And Mr. Jaishankar ने somewhat indirectly said that aptly attributed his comment attributed it to a vote bank politics by the Canadian Prime Minister. कि अपीज करने के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो डोमेस्टिक अपने आप में जो एक पॉपुलैरिटी हो कम होती जा रही है, और इस वजह से एक अलायंस गवर्नमेंट रन कर रहे हैं जिसमें कि इस पार्टी के से कुछ मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इनकी सरकार को. तो उनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन है, सो दैट की ऐसे स्टेटमेंट्स देख के कहीं ना कहीं खुश करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर वोट बैंक या गार्नर करना चाहते हैं. तो यही सब है. Mr. Jaishankar comments on Canadian attitude to ethnic Indians provide an occasion to consider the Indian political class approaches towards the diaspora, which has gained political, financial, and professional success in countries
इट हैज बिकम अ पिलर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ कोर्स डायस्पोरा की बात करें, जो लोग बाहर रह रहे हैं हमारे देश के, especially of the present dispensation, which has also used prime minister popularity with a vast section of the diaspora to impress domestic public opinion. ठीक बात है. Also, wherever the diaspora is politically important, local politicians want to use Mr. Modi's popularity for their political purposes. वो यूएस में भी आप देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, या ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो. ठीक है. Following Mr. Modi's example, other Indian political players will also now play diaspora politics. And जैसे so another significant issue which Mr. Jaishankar addressed during the media briefing related to the remarks of Jodie Thomas, Canada's National Security and Intelligence Advisor. He said that somewhat Ms. Thomas said, when I talk about foreign interference and economic security, I am now talking of a number of state actors and proxies. This include Russia, Iran and India. तो वहाँ के जो मिनिस्टर उन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, स्पेशली फॉरेन इंटरफेरेंस की बात की है, जिसमें नाम जो लिया था रशिया, ईरान एंड इवन इंडिया. So, and in no surprise to anybody is China, of course. So in response, Mr. Jaishankar used the Hindi language phrase "ulta chor kotwal ko dante," the thief scours the police. He rightly dismissed Mr. Thomas' comment outright. India cannot be accused of seeking to influence Canadian domestic affairs if its diplomat openly interact with the Indian diaspora there. ये कहा था इन्होंने. तो कैनेडियन पॉलिटिक्स इसमें जाने की जरूरत नहीं है. एनडीपी है, क्योंकि जगमीत सिंह एनडीपी लीडर हैं. ही इज कमिटेड खालिस्तानी सिंपथाइजर एंड ही इज एन अलायंस विद द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन पॉलिटिकल पार्टी. तो ऑफ कोर्स सरकार बचाने की कवायद है. डिफेंस बोर्ड डिस्कसेस प्लान फॉर सेकंड विक्रांत लाइक करियर. तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड जो है इसने डिस्कस किया है एंड फाइनल अप्रूवल जो है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देती है इसके लिए. बाय एक्चुअली हेडेड बाय दिस काउंसिल इज हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर. की विक्रांत जो इंडिजिनस हमने एक बनाया है करियर, उसी डायरेक्शन में एक और हमें करियर बनाने की ज़रूरत है. जो भी है देखी जाएगी. उसके बाद जो न्यूज़ है दैट इज़ फाइव आइज अलायंस. तो फाइव आइज गेव इन कैनेडा इंटेलिजेंस इन नीजर केस सेज यूएस इन वॉय. ठीक है, फाइव आइज. तो ये 5 कंट्रीज हैं जिनकी अलायंस है. कौन कौन सी ये कंट्रीज हैं? इनका नाम ही फाइव आइज है एंड दैट इज रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस शेयरिंग. ठीक है, बहुत ही रोबस्ट इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म है बिटवीन दिस ऑफ कोर्स द 5 कंट्रीज. एंड द 5 इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस इज मेड अप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड, द यूके एंड द यूएस. तो ऑलरेडी इन कनाडा को इंटेलिजेंस शेयर कर दी थी यूएस की एजेंसीज ने, फिर भी ऐसा कुछ हुआ. It's a world very much of double standards, says by Jaishankar. He is in, of course, New York, and tomorrow he is going to address the 78th session of the United Nations General Assembly. So, जो ग्लोबल नॉर्थ है उसको क्रिटिसाइज करते हुए हमारे जयशंकर साहब ने कहा है कि डबल स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबल नॉर्थ प्रैक्टिस करता है. Here we have politics only. एक वैक्सीन विल जो है यूपी में देखने को मिल रही है टू ट्रैक न्यूबॉर्न इम्यूनाइजेशन. बस आपको इतना पता हो कि वैक्सीन विल जो है वो यहाँ पे किस स्टेट से रिलेटेड है, पर्पस. 9 न्यू वंदे भारत ट्रेन टू रिलीजियस टूरिस्ट साइट्स कल प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया है. एंड हाउस पैनल दैट इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, इसने सरकार को ये कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के टू मॉनिटर एक्टिविटीज ऑफ ESIC दैट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन so that social security benefits reach workers. ठीक है, तो इतना ध्यान रखना. What else important from today's newspaper? So world news, world. Okay. So refugees leave as Azerbaijan takes control of Karabakh, Nagorno-Karabakh region के जिसको लेकर के अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. आज से नहीं, पिछले कई सालों से ऐसा चल रहा है.
ठीक है, एंड ये इंटरमीडिएटली जो है वो मिल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नोगोर्नो काराबाग इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। So that's it as far as today's Hindu analysis is concerned. Before we stop, let us have a quick look at today's questions based on whatever we've discussed. So first is, the attempt being made by the government of the day to veer towards simultaneous elections will deeply problematic in parliamentary democracy, but may be possible in a presidential democracy. You need to comment in 250 words for a 15-mark questions. 15-mark question. Second question is, Bennu was recently in news. It is the, so you need to find out what exactly is a Bennu, satellite, Jupiter's moon, asteroid, or a meteoroid. Fine. So that's it as far as today's Hindu analysis is concerned. If you have any query, anything, you can put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising, and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Thank you.